Good morning, students. Today's date is 10 July and we are going to start our 7th chapter of class 8th linear equation in one variable. Firstly, we will discuss about linear equation in one variable. Listen, linear equations are, we have discussed in previous classes that what are the equations, what are the linear polynomial, binomials, trinomial, yes or no? If a equation has degree 1, then that is a linear equation. Like as if I write any example, 3x plus 5, it is a linear equation because in which equal is also present. In 6th standard we have discussed what about the equation. Equation, any algebraic expression having sign of equal, it is a equation, and the degree of this algebraic expression is 1 because degree is known as highest power, maximum power of variable is known as degree. So degree of this algebraic expression is 1 because highest power of variable is 1. It is a linear equation. The words define linear equation. But after that, in one variable, if I write any another example, 3x plus 5y plus 2 is equals to 0. It is also an equation, yes or no? Because in which equal sign present, and it is a linear equation because the power of variable is also 1, so it is also a linear equation. But one variable, two variable, three variable, four variable, what are defined? Linear equation in one variable, in which in linear equation if a single variable is present, single variable, yeah, we can say one variable is present. Like as in this equation, only a single variable is present, that is x. But in this type of equation, here are two variables are present, yes or no? First one is x and second one is y. So in this equation, two variables are present. So this is linear equation but in two variable, and this is a linear equation in one variable. If I write some another example, 3x square plus 7x plus 3 is equals to 0. It is a linear equation? No. It is a quadratic equation because highest power of variable, degree of this variable is 2. So it is not a linear equation. If I write another example, 2x plus 3y is equals to 9. It is a linear equation. Yes, it is a linear equation because in this equation the power of variable is, the degree of this algebraic expression is 1. But in this equation there are two variables are present, that are x and y. If I write 3s minus 5t equals to 0, it is also a linear equation. It is also a linear equation because in this the power of variable is 1, but there are two variables present, that is s and t. So we will discuss in this chapter only linear equation in one variable, like as that we have also discussed in previous classes in 7th standard, in 14th chapter, and in this class also we will describe about solve these equation. Let's see. If I write example number 1, 3x plus 5 is equals to 5x plus 7, how we will solve these equation? We have discussed in previous classes also. 3x plus 5 is equals to 5x plus 7. How we will solve this equation? We know that there are the two linear equation. This is also a linear equation. This is also a linear algebraic expression, and equal sign also present. How we will solve these equation? Let's see. Firstly, जो variable terms हैं, we know that 3x is a term.
In 6th chapter also discussed, 3x is a term and 5x is a also term. In this term variable x is present, yes or no? Yes. 5x in this term also variable is present. तो फर्स्टली जिस भी टर्म में आपके पास वेरिएबल है, वट एवर वेरिएबल इन विच इक्वेशन x, y, u, v, w, t, वट एवर English alphabet, small letter, these are the variables represented by variables, small English alphabet letter. 3x and 5x are variable, and 5 and 7 are, these 5 and 7 are the constant term because they are the fixed value. 5, the value of 5 is 5 always, these are the fixed value. 7 is always 7, so these are the fixed value, these are the constant value, not changes. बट वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जो चीज़ वेरी कर रही है, x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 5 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा. सो x क्या वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. फर्स्टली आपको जो भी वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में पहले से क्या है, 3x है, इसका कोई साइन नहीं चेंज होगा. 3x वेरिएबल पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सुनो. दिस वन LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन RHS राइट हैंड साइड. वी हैव टू डू फर्स्टली वेरिएबल, ऑल वेरिएबल शिफ्टेड टू LHS. 3x पहले से LHS में है, कोई साइन चेंज नहीं होगा इसका. RHS में 3 LHS में कोई और वेरिएबल है, नो. RHS में वेरिएबल टर्म 5x, तो फर्स्टली 5x को शिफ्ट करेंगे LHS में. 5x का साइन कौन सा है, प्लस का. प्लस का 5x LHS में शिफ्ट करेंगे, साइन किसका हो जाएगा, -5x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में पहले से क्या है, 7 है, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे. प्लस का 5 LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, मीन्स प्लस का 5 इक्वल के अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इसका कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा. 7 - 5. वी हैव टू सॉल्व दिस वन. 3x - 5x. वी नो दैट इफ ए डिजिट ऑफ 1 डिजिट प्लस साइन, 1 डिजिट माइनस साइन, साइन ऑफ बिगेस्ट डिजिट, 5 इज बिगर देन 3, द साइन ऑफ biggest digit and the difference of both digit, 5 and 3 difference 2, so we have -2x is equals to 7 - 5, we know that 2. After that we have to find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. so what we have to do, इक्वल में क्या है, 2, ऐसे ही रहने दो. x के मल्टीप्लाई में क्या है, हमें ओनली x चाहिए. सो x के मल्टीप्लाई में क्या है, -2. वी हैव टू शिफ्ट अपोजिट टू इक्वल. सो मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ शिफ्ट होगी, डिवाइड में. 2/2 1 माइनस, सो x इक्वल्स टू -1. इजी क्वेश्चन है. फर्स्टली वेरिएबल शिफ्ट करो LHS में, बाकी की टर्म RHS में शिफ्ट करो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the questions, there are some patterns. We have to solve these questions one by one. Next, take another example. Another example is 2x plus 4/3 is equals to 7x plus 2/9. How we will solve these equation? Firstly variable shift कर लीजिए. 2x 7x शिफ्ट किया, माइनस में 2/9 पहले से ही RHS में था, कोई साइन चेंज नहीं होगा. 4/3 शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, प्लस का है, किस में हो जाएगा, माइनस में. 2x - 7x - 5x. देयर आर द टू फ्रैक्शन with different denominator, so we have to take LCM of these two numbers, LCM of denominator, and we know that LCM of 9 and 3 is 9. How we will solve these two fraction with two different denominator? Firstly take LCM of denominator, and 9 and 3 LCM is 9. 9 divide by 9, we have to do 9 divide by 9, we get 1. Multiply with upper part numerator, minus 9 divided by 3, we get 3,
मल्टीप्लाई विद अपर पार्ट, माइनस 5x, 1 2 जा 2, 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 9, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9. आफ्टर दैट x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9. x के मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस 5. वी हैव टू शिफ्ट. मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ शिफ्ट होगी? डिवाइड में. माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेबल से 2 पे. तो आंसर क्या गया? x इज इक्वल टू 2/9. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू 2/9. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज से ले रहे हैं. 1 सेकेंड. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x upon 7 is equals to 3. So we have to solve these linear equation. How we will do this? Firstly, take LCM of 5 and 7. Firstly, we will solve LHS part. LCM of 5 and 7. We know that the LCM of two prime number is the multiplication of the number. 5 7 ja 35. We know that 35 divided by 5 we get 7. 7 multiply 3x minus 1. 35 divided by 5 we get 7. 7 multiply with न्यूमरेटर पार्ट. 2 डिजिट थी इसीलिए ब्रैकेट शो कर दिया. माइनस 35 divided by 7 we get 5. मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर पार्ट x. 3 divided by 1. 7 3 जा 21x. ब्रैकेट ओपन कर ले. 7 3 जा 21x. 7 1 जा 7. 5 मल्टीप्लाई x 5x डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 3/1. 21x माइनस 5x. दीज आर द लाइक टर्म्स बिकॉज दोनों में वेरिएबल है x एंड x, दोनों भाई भाई हैं. 21x माइनस 5x 16x माइनस 7 डिवाइड बाय 35 is equals to 3/1. Now we have to do what we have to do. We know that we have solved these types of question in previous classes. Yes or no? Now we have to do cross multiplication. Yes or no? Yes, cross multiplication. So 1 multiply with 16x minus 7 is equals to 35 multiply with 3. 35 multiply with 3. 1 multiply with same number. 1 multiply 16 16x. 1 multiply 7 7. 35 3 जा 35 3 जा. औरल सोल्व करेंगे. 3 5 जा 15 कैरी 1. 3 3 जा 9. 9 plus 1 carry 10. So we have 105. So linear equation in one variable. Yes or no? सिंगल वेरिएबल. सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सिंपल कर लिया पहले इक्वेशन को. अब कैसे सॉल्व करेंगे? 16x इज इक्वल टू माइनस का 7 का शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में. माइनस की डिजिट इक्वल के अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे. साइन किसका हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. 16x इज इक्वल टू 112. x इज इक्वल टू 112/16. After that, the value of x is table of 16. X is equals to 7. 16 7 ja 112. So we have the final answer. X is equals to 7. Now we will solve exercise questions. First question. There are 8 parts. First question. सिंपल है बट थोड़ा माइंड लगाना होगा. अलग अलग पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन 1.2y
प्लस 18/25 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 39 डिवाइड बाय 35. We have to solve these equation, linear equation. So what we have to do? Firstly, you can do 5y LHS side में shift कर लो. We know that this is LHS side and this is RHS side. So आप क्या कर सकते हो? Firstly, you can do 5y को RHS से LHS में शिफ्ट कर लो. 18/25 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे RHS में शिफ्ट कर दो. फर्स्टली आप ये कर सकते हो, रफ नोटबुक में ट्राई भी करना आपने. एंड अनदर वे यू कैन रिमूव पॉइंट ऑफ 1.2. सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पॉइंट रिमूव करके. लिसन, 1.2y प्लस 18/25 इज इक्वल टू 5y माइनस 39/35. पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या लग जाएगा 10. नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 12y अपॉन में 10 प्लस 18/25 इज इक्वल टू 5y माइनस 39 डिवाइड बाय 35. अब सिंपल इक्वेशन है, कोई पॉइंट नहीं है. शिफ्ट कर लेता हूँ 5y को, कट भी कर सकता हूँ इसे एज यू विश. अगर आप इसे 2 की टेबल से कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, बट मैं अभी कट नहीं कर रहा. 12y डिवाइड बाई 10 माइन 5y किस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का 5y है, इक्वल से इधर लेके आ रहे हैं माइनस में. ये डिजिट पहले से ही माइनस किया है, इसे कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, सो ये किस में रहेगी, माइनस के अंदर. प्लस 18/25 शिफ्ट कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया माइनस 18/25. In the left hand side there are the two fraction, we have to take LCM. In right hand side also there are the two fraction with different denominator, so we have to take also LCM. So solve these. We know that LCM of 10 and 1, 10 divided by 10 we get 1. थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ. 10 divided by 10 we get 1. 1 multiply 12y, we know that 12y. 10 divided by 1, 10 divided by 1, a number divided by 1 we get same number. So 10 divided by 1 we get 10, and 10 5 ja 50 is equals to LCM of 35 and 25. LCM of 35 and 25, 35 25 we get by 5 7 5 5 7 1 1 1. 5 5 जा 25, 25 7 जा 175. So now what we have to do, 175 divided by 35. Yes or no? If 175 divided by 35, 7 5 is 35, so we remaining 5. So 5 multiply with numerator digit minus 39. So ब्रैकेट लगा दिया, देन साइन कौन सा है, माइनस का. 175 divided by 25, 5 5 जा 25, so we have remaining 7. 7 multiply with 18. ये माइनस हमने यहाँ यूज कर लिया, तो 18 किसका लगा दिया, प्लस का. ध्यान रखना दोनों जगह माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. माइनस का साइन यहाँ पे लगा लिया तो 18 को सिर्फ 18 ही लिखेंगे. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, listen, 12y minus 50y we get minus 38y divided by 10. 1 डिजिट प्लस किया, 1 डिजिट माइनस किया, साइन ऑफ बिगेस्ट डिजिट, दोनों डिजिट का डिफरेंस अपॉन में 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद माइनस 39. ऑरल करेंगे, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19. साइन किसका है, माइनस का. माइनस 18 7 जा 18 7 जा 18 7 जा, टेबल लर्न होना चाहिए, 126. डिवाइड में क्या है, 175. सो
-38y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, ऐड किया, -321 डिवाइड बाई 175. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली y. सो y के मल्टीप्लाई में जो डिजिट है शिफ्ट कर लेंगे. y इज इक्वल टू, इक्वल में जो है वो पहले लिख लो, इसे कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे, तो सेम एज इट इज राइट कर लिया. y के मल्टीप्लाई में क्या है, -38, शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, ये लो कर दिया. y के डिवाइड में क्या है, 10, शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इस डिजिट के मल्टीप्लाई में क्या राइट कर दिया, 10. माइनस से माइनस कैंसिल. आफ्टर दैट कैंसिल कर देते हैं. 5 की टेबल से 2 पे, 5 की टेबल से 35 पे, 2 की टेबल से 9 पे, क्या रिमेनिंग रहा, y इज इक्वल टू 321 डिवाइड बाई 35 इंटू 19. 35 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 321 में डिवाइड करो, एंड वी गेट द फाइनल आंसर 0.48. बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्टली आप 5y को भी शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने पॉइंट रिमूव करके किया वैसे भी कर सकते हो. सेकंड पार्ट, सेकंड जो क्वेश्चन है बी पार्ट, इजी क्वेश्चन है, आपको घर पे ट्राई करना है. वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. 0.12y प्लस 0.5 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू y बाय 3 प्लस 1.5. क्लियर है? वट वी हैव टू डू, फर्स्टली आप y अपॉन 3 को भी शिफ्ट कर सकते हो, फिर एलसीएम वगैरह ले सकते हो, या फिर आप पहले ये वाला पॉइंट रिमूव कर लो. और ये डिवाइड्स का मीनिंग क्या है, दोनों डिजिट के अपॉन में 2 लग जाएगा. 0.5 के अपॉन में भी 2 लग जाएगा, y के अपॉन में भी 2 लग जाएगा. ये भी पॉइंट रिमूव कर सकते हैं. फर्स्टली तो मैं इन दोनों डिजिट को अलग अलग कर रहा हूँ. सॉल्यूशन 0.12y, 2 डिजिट है, प्लस में डिवाइड में 2 मीन्स दोनों के अपॉन में 2 लगा दो. 0.5 के अपॉन में भी 2 और y के अपॉन में भी 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 प्लस 1/5. अब सारी डिजिट अलग अलग होगी. अब क्या करें, पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, या फिर y अपॉन 3 को इधर शिफ्ट कर लो. मैं पहले पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ. पॉइंट रिमूव किया, 1 और 2 दो डिजिट होगी, डिवाइड में क्या आएगा 100. पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या लगी 0. पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में क्या लग गया 10. अब पॉइंट रिमूव करके जो सिंपल डिजिट होगी वो नीचे राइट कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट 12y अपॉन में 100 प्लस 5 अपॉन 20, शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट कर लिया 1/4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3. पॉइंट रिमूव किया 15/10 और 15/10. 15/10 को सिंप्लीफाई करके 5 की टेबल से कट कर लिया 3/2. तो मैं 3/2 ही राइट कर रहा हूँ. आफ्टर दैट इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बट नहीं कर रहा मैं अभी. 12y डिवाइड बाई 100, y अपॉन 2 पहले से ही LHS में है, y अपॉन 3 RHS से लेके आ रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू, इक्वल के अपोजिट साइड में क्या है 3/2, इसका कोई साइन नहीं चेंज होगा. 1/4 को इक्वल के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ प्लस का है, साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. वी टेक एलसीएम ऑफ 100, 2 एंड 3. LCM of 100, 2 and 3 we will get 300, and LCM of 2 and 4 is 4. Firstly RHS solve कर लेते हैं, easy है. 4 divided by 2 we get 2, and 2 3 जा 6. 4 divided by 4 1. 1 multiply with upper part 1. हाँ जी, 300 divided by 100 we get 3. 3 multiply 12y 36y. 300 divided by 2 150. 150 multiply y 150y minus 300 divided by 3 100. 100 multiply y 100y. After that 36 plus 150 minus 100.
after simplification we get 86y upon 300 is equals to 6 minus 1 5 upon 4. We have to find the value of only y. So right hand side में जो digit है as it is, divide वाला 300, multiply में 86, divide में. After dividing 4 divided by 75, we get y is equals to 5 multiply 75, 5 5 जा 25, 2 carry 5 7 जा 35, 35 plus 2 37, 86. After dividing we get y is equals to 4.36. Easy questions है. Fourth part D easy है, and E F G H you have to try these questions. If there is any doubt, so you can discuss with me. Second part is also easy. Solve the following equation and check your answer. आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है. यू हैव टू डू. इन थर्ड क्वेश्चन, solve the following equation. You can see in all 4 questions, these questions are in the form of ax plus b divided by cx plus d is equals to q. मीन्स ऊपर भी एक लीनियर फॉर्म है, नीचे भी एक लीनियर फॉर्म है, और इक्वल में कुछ ना कुछ गिवन है आपको. सो यू हैव टू डू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस multiplication, like as first question I will explain, and the remaining question you have to do by yourself. Question number 3, part A. A question is 2 minus 9y divided by 17 minus 4y is equals to 1 upon 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको देखना क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर भी कंप्लीट लाइन लगी है, मीन्स कंप्लीट डिजिट के अपॉन में डिनोमिनेटर है, और राइट हैंड साइड में भी जो डिजिट है वो कंप्लीट डिजिट बन के उसके अपॉन में एक सिंगल डिनोमिनेटर है. देन यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 4 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 9y. सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने. 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9y is equals to 1 multiply 17 minus 4y. 4 to the 8, 4 9 the 36. 1 multiply 17 we get 17. 1 multiply 4y, 4y. साइन किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है. इक्वेशन सिंपल हो गई. यस और नो? यस. 4y को शिफ्ट कर लिया. 36y माइनस का पहले से आ रहा है चश्मे, कुछ नहीं करेंगे. माइनस का 4y शिफ्ट किया तो प्लस का 17, प्लस का 8 शिफ्ट किया माइनस में, प्लस का 8 शिफ्ट किया माइनस में. 36y प्लस 4y वी गेट माइनस 32y. साइन ऑफ बिगेस्ट डिजिट इज इक्वल टू 17 माइनस 8 वी गेट 9. y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई वाला माइनस 32 डिवाइड के अंदर. आफ्टर दैट माइनस को क्या ऊपर राइट करेंगे, माइनस 9 अपॉन 32. सेम टेबल से कैंसिल नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया. सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.1 इन योर रफ नोटबुक. इफ देयर इज एनी डाउट सो यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू सो मच. इन next video we will discuss about the statements, how we will solve these questions. We have also discussed in previous classes also. So in next session, in next video we will discuss about 7.2. so you have to do 7